Good evening, everyone. So this is the sum we will do now. The summary balance sheet of A Limited and B Limited as on 31st December 2012 were as follows. Liabilities. Liabilities, there are two companies, A Limited and B Limited, asset A Limited and B Limited. So equity share capital, one share is of 10 rupees. There are 24 lakh. One more thing which I want to write here is, mention here is rupees in, I will write it here so that it is visible, rupees in lakhs. So all what is given here are rupees in lakhs. So 24 lakhs divided by 10, it will be 2 lakh 40,000 shares, and 12 lakh divided by 10, it will be 1 lakh 20,000 shares. So now there are reserves, share premium, capital reserve, general reserve, P&L account, creditors current account is the overdraft balance in the liability side. When you see the current account, means it is a overdraft balance, and when you see it in the asset side, it is a positive bank balance. So now what they have said here, A Limited acquired on 1/1/2012, that is the first day of the year. This is 31. The balance sheet given is of 31/12/2012. That means 31st December. ये अगर बिजनेस 1/1/2012 को एक्वायर हुआ है, मीन्स इट इज अ पीरियड ऑफ 1 year from the acquired on 1/1/2012 from the shareholders of B Limited. 96,000 shares were allotted to them at rupees 10,80,000. So here they have told the number of shares which were purchased, which is more than 50%, because total number of share in B Limited was 12 lakh, that is the capital, and one share is of 10, means the numbers will be 1,20,000, out of which 96,000 shares are purchased. So A Limited becomes a holding company of B Limited. A Limited is the holding company of B Limited, and the amount at which it is purchased is also given in the investment. It is 10,80,000, and 10,80,000 is given down also. So we know this. It is 10,80,000. Now next what is given, the consideration for the shares. So the consideration for the share of B Limited was arrived at, see here what is given, valuing the plant and machinery at 10,44,444, 10,44,444. Here the old value is 8,50,000 and the new value given is 10,44,444. Furniture, the new value is given 83,211 and the old value is 80,000. And they said placing no value for trade investment and goodwill. So हमारे पास ट्रेड इन्वेस्टमेंट है बी लिमिटेड का, उसका वैल्यू 0 हो गया है,
एंड गुडविल है उसका भी वैल्यू 0 हो गया है. एंड दे से द depreciating figures for plant and machinery and furniture on 31/12/2012 were after providing depreciation for 2012 at 10% and 5% respectively on the book value asset 1st January 2012. तो यहाँ पे देखो क्या करना है, हमें डेप्रीसिएशन को भी यहाँ पे कंसिडर करना है. प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रीसिएशन है 10% एंड 5% डेप्रीसिएशन है फॉर द नेक्स्ट वन फर्नीचर. और ये जो वैल्यू है ये 31 दिसंबर का वैल्यू है. ये 8,50,000 एंड 80,000. These are the value of plant and machinery and furniture as at 31st December. But what they have told कि हमें कौन से वैल्यू से निकालना है, 1 जनवरी के वैल्यू से. सो दे से तो वो ध्यान में रख के वी विल हैव टू डू. So they say where after providing depreciation for 2012 at 10%, मतलब depreciation provide करने के बाद from 1st January 2012 10% for plant and 5% for this one furniture. So we have to, when there is a revaluation in this sum, we also have to consider depreciation. हमें और एक चीज को कंसिडर करना है ये सब में, and that is what we have to consider the depreciated value. So हम क्या करेंगे, next one, the stock of B Limited included rupees 50,000 in respect of goods received from A Limited, invoiced at cost plus 25%. So क्या they are saying here, तो जो स्टॉक है B लिमिटेड का, it included 50,000. stock of B Limited 1,50,000. it included स्टॉक ऑफ बी लिमिटेड इंक्लूडेड 1,50,000 में 50,000 जो है इट वाज इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स रिसीव फ्रॉम ए लिमिटेड. मतलब जो बी लिमिटेड का स्टॉक है, बी लिमिटेड का स्टॉक है, इट इज includes it, the B limited stock is the stock which has been purchased from A limited. तो 50,000 का जो स्टॉक है इंक्लूडेड 1,50,000 द स्टॉक ऑफ बी लिमिटेड. बी लिमिटेड का स्टॉक है 1,50,000. इट इंक्लूडेड rupees 50,000 in respect of goods received from A limited and it has been invoiced at cost plus 25%. So ये 50,000 में प्रॉफिट इंक्लूडेड है. और जब अभी एक्विजिशन के बाद A limited and B limited are one business, A limited and B limited are one business. तो इसका मतलब है both are one business. That means in between A limited and B limited there should not be any profit element. तो जो unrealized profit, अगर ये 50,000 का गुड्स जो A लिमिटेड ने जो B लिमिटेड ने स्टॉक ऑफ B लिमिटेड में इंक्लूडेड है ना, तो अगर B लिमिटेड ने इसको सेल ऑफ कर दिया होता, अगर ये स्टॉक वुड हैव बीन सोल्ड आउट, तो ये प्रॉफिट रियलाइज नहीं हुआ, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता. बट अभी ये स्टॉक में प्रॉफिट इंक्लूडेड है और ये स्टॉक ए लिमिटेड से खरीदा है, तो दोनों ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड आर वन ग्रुप नाउ. सो इनके बीच में कोई प्रॉफिट एलिमेंट नहीं होना चाहिए. सो वो हम माइनस करेंगे एंड दैट आई विल शो यू व्हाइल creating the consolidated profit and loss account. तभी I will calculate the unrealized profit. Now what we will do, we will start this sum with first what we will do, we will find out the holding ratio. सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम होल्डिंग रेशियो निकालते हैं. व्हाट इज होल्डिंग रेशियो?
shares held by which is the company A Limited equal to shares held by B Limited. सो अभी हमें देखना है कि ए लिमिटेड के पास कितना शेयर्स है. ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड का 96,000 शेयर्स खरीदा, तो 96,000 और बी लिमिटेड के पास कितना बचेगा. 1,20,000 में 96,000 खरीद लिया ए ने, तो बी के पास लेफ्ट आउट हो गया 24,000. So the ratio is 330 कम करते हैं, so it will be 96 and 24. ये दोनों एक टेबल में आता है 96 and 24. इसको छोटा कर सकते हैं. Can we reduce it? So देखो कितने में कम होता है. ये 24 के टेबल में 96 4 टाइम्स में आता है एंड 24 ones are 24, so we get the ratio 4:1. एनी कंफ्यूजन हियर. देखो कितना शेयर्स ए लिमिटेड ने, और अब जो हम डिवाइड करेंगे हम सिर्फ सब्सिडरी कंपनी विच इज बी लिमिटेड इसके प्रॉफिट्स को और शेयर्स को डिवाइड करने वाले हैं. तो यहाँ पे ए लिमिटेड इज एक्वायरिंग मैक्सिमम शेयर्स इन बी लिमिटेड एंड ए लिमिटेड इज बिकमिंग द होल्डिंग कंपनी ऑफ बी लिमिटेड एंड बी लिमिटेड इज द सब्सिडरी कंपनी. So therefore, what we will do now, we found out the holding ratio. अभी नेक्स्ट हम कौन सा प्रॉफिट निकालेंगे. नेक्स्ट हम होल्डिंग रेशियो के बाद नेक्स्ट वी विल फाइंड आउट the capital profit. Capital profit मतलब क्या. Capital profit are the profits of the subsidiary company. किसका प्रॉफिट है. सब्सिडरी कंपनी का प्रॉफिट है बिफोर एक्विजिशन. मतलब एक्विजिशन से पहले का प्रॉफिट को हम बोलेंगे कैपिटल प्रॉफिट. So here कैपिटल प्रॉफिट क्या है जरा देखते हैं. हमारे पास यहाँ पे कौन सा प्रॉफिट है सब्सिडरी कंपनी में. कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. देन वी हैव प्रॉफिट फॉर द ईयर. सो सब्सिडरी कंपनी का सब प्रॉफिट्स हमें डिवाइड करना है. सो कैपिटल प्रॉफिट में व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर. कैपिटल प्रॉफिट में हमारे पास है कैपिटल रिजर्व. So how much is the capital reserve? Capital reserve is 80,000. फिर कौन सा रिजर्व है. कैपिटल प्रॉफिट. एंड एक्विजिशन कब हुआ है. देखो एक्विजिशन फर्स्ट डे ऑफ द ईयर हुआ है, तो पूरा प्रॉफिट फॉर द ईयर विल बी रेवेन्यू प्रॉफिट. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू प्रॉफिट एंड सब कैपिटल प्रॉफिट. कैपिटल प्रॉफिट इज द प्रॉफिट बिफोर एक्विजिशन एंड रेवेन्यू प्रॉफिट इज द प्रॉफिट आफ्टर एक्विजिशन. तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमने क्या किया, ये सब में होल्डिंग रेशो फाइंड आउट किया. तो होल्डिंग रेशो फाइंड आउट करते वक्त यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है दैट ए लिमिटेड ऑन 1/1/2012 हैज एक्वायर्ड 96,000 शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड. तो बी लिमिटेड में टोटल
12 लाख का कैपिटल है और एक शेयर 10 रुपीज का है, तो 12 लाख डिवाइड बाई 10 इट बिकम्स 1,20,000 शेयर्स। तो 1,20,000 शेयर पे 96,000 शेयर हैज बीन एक्वायर्ड बाय होल्डिंग कंपनी। तो रिमेनिंग कितना शेयर्स बचा सब्सिडरी कंपनी के पास? 1,20,000 में 96,000 शेयर्स माइनस किया तो सब्सिडरी कंपनी दैट इज बी लिमिटेड इज हैविंग 24,000 शेयर्स। नाउ वी कम टू द प्रॉफिट। सो कैपिटल प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिट बिफोर एक्विजिशन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है प्रॉफिट बिफोर एक्विजिशन? हमारे पास यहाँ पे वी हैव कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैपिटल रिजर्व बी लिमिटेड में क्या है? कैपिटल रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। जनरल रिजर्व एंड P&L अकाउंट दोनों 1 लाख है। सो नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल राइट आफ्टर कैपिटल प्रॉफिट वी हैव जनरल रिजर्व, 1 मिनट, सो ये गैप नहीं चाहिए मुझे, so I will remove this। so दोनों का अमाउंट इट इज 1 लाख। एंड क्या हुआ है? there is a revaluation in the value of assets, there is a revaluation in the value of assets and we have to consider it। so before देखो 1 जनवरी के हिसाब से they have given कि what is the revalued figure। तो यहाँ पे देखते हैं revaluation प्रॉफिट है क्या लॉस है, पहले वो देखेंगे। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी का नया वैल्यू कितना है? प्लांट एंड मशीनरी का नया वैल्यू है 10,44,444 और इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा, हमें मालूम होना पड़ेगा व्हाट इज द ओल्ड वैल्यू। सो यहाँ पे जो हमें दिया है 8,50,000 वो डेप्रीसिएशन माइनस करने के बाद वाला वैल्यू है। 8,50,000 कैसे मिला? यहाँ पे देखो दिया हुआ है 8,50,000। तो ये 8,50,000 ये प्लांट एंड मशीनरी पे कितना वैल्यू माइनस करके आया हुआ है? 10% वैल्यू माइनस करके आया हुआ फिगर है। तो यहाँ पे देखो जो हमारे पास है 8,50,000 ये कितना है? दिस इज 90% वैल्यू, दिस इज व्हाट 90% वैल्यू। तो वी वांट टू नो द 100% वैल्यू कितना है। सो वी वांट टू नो द 100% वैल्यू कितना है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। व्हाट विल बी द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन? 8,50,000 into 100 डिवाइड बाई 90। तो 8,50,000 into 100 डिवाइड बाई 90। तो ये जो फिगर हमें आया है इट इज आफ्टर द 10% डेप्रीसिएशन। तो ये बुक WDV है पर हमें तो ओरिजिनल कॉस्ट से कंपैरिजन करना है, तो हमें पता नहीं व्हाट इज द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये 8,50,000 it is the value wherein 10% depreciation has been charged for the full year। तो इसका मतलब जरा देखो कितना आ रहा है? 8,50,000 into 100 divide by 90, it is coming 9 lakh। the value is coming how much? The value is coming, the original cost is coming 9,45,000
44,400 and 444, 9,44,400 and 444, मतलब मशीनरी का डिप्रिसिएशन से पहले वैल्यू था 9,44,444. नाउ आफ्टर revaluation the new value is 10,44,444. so इसका मतलब there is a इसका मतलब there is a profit. so this is a profit. This is what? This is revaluation profit. This is revaluation profit. कितने का प्रॉफिट हुआ है? 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है. अब सेम वे हमें फर्नीचर का चेक करना है. अभी सेम वे हम फर्नीचर का चेक करेंगे. फर्नीचर का वैल्यू कितना है? फर्नीचर का वैल्यू, नया वैल्यू जो दिया है, इट इज 83,211 और इसमें से माइनस करना है न्यू. हमें ओल्ड नया वैल्यू पता है, अभी हमें कॉस्ट नहीं पता फर्नीचर का. तो फर्नीचर पे कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है? मशीनरी पे 10%, फर्नीचर पे इट इज 5%. फर्नीचर पे इट इज 5%. तो यहाँ पे जो 31/12/2012 में जो ये वैल्यूज आया है ना, 8,50,000, 80,000, ये डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद वाला वैल्यूज है. पर हम लोग तो 1/1/2012 दैट इज फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, उस दिन एक्विजिशन कर रहे. तो उस टाइम पे क्या हुआ? बिजनेस के असेट्स का रीवैल्यूएशन हुआ है, तो हमें उस दिन के वैल्यू से कंपेयर करना पड़ेगा. तो 1/1/2012 को फर्नीचर का नया वैल्यू है 83,212, बट यहाँ पे जो ओल्ड वैल्यू दिया है ये तो ईयर एंड का वैल्यू है 80,000, जिसपे 5% का डिप्रिसिएशन माइनस हुआ है. तो 80,000 ये कितना है? ये 5% का डिप्रिसिएशन माइनस करके ये कितना परसेंट है? ये 95% है. हमें क्या चाहिए? हमें 100% वैल्यू चाहिए. तो हमें क्या करना पड़ेगा? 80,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 95. तो जरा ये करो कितना आंसर आता है. 80,000, ये जो वैल्यू है ये 31/12/2012 का वैल्यू है ईयर एंड का, पर हमें ईयर बिगिनिंग का वैल्यू चाहिए. तभी ये 95, सॉरी इसको क्या करेंगे? 100 डिवाइड बाय 95, बिकॉज 80,000 इज 95% वैल्यू. तो हमें कितना मिलेगा? जस्ट चेक. 80,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 95, ओल्ड वैल्यू मिल रहा है 84,211. ओल्ड वैल्यू था 84,211 और जो न्यू वैल्यू है इट इज 83,211. मतलब वैल्यू कम हो गया. नया वैल्यू जो है इट इज लेसर वैल्यू, सो इट्स अ रीवैल्यूएशन लॉस. इट्स अ रीवैल्यूएशन लॉस. तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में बताऊंगी रीवैल्यूएशन लॉस ऑफ 1,000 रुपीज. इट्स अ रीवैल्यूएशन लॉस of 1,000 rupees. रिवैल्यूएशन लॉस हुआ 84,211 से. जो नया वैल्यू फर्नीचर का है इट इज 83,211, इस वैल्यू कम हो गया. There is a loss. एंड इसके बाद दे से कि जो हमारे पास ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड गुडविल है ना, इसका वैल्यू लेस हो गया, प्लेसिंग नो वैल्यू. मतलब ये दोनों का वैल्यू जो है वो 0 हो गया. तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट 30,000 है, गुडविल 1,50,000 है. ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज 30,000, गुडविल इज 1,50,000. सो ये वैल्यूज भी कैंसिल करना पड़ेगा. सो क्या हो गया? देयर इज अगेन यहाँ पे लॉस और लॉस हो गया है. क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट का वैल्यू भी 0 हो गया एंड
जो हमारे पास गुडविल है उसका भी वैल्यू नो वैल्यू हो गया, वैल्यू बिकेम 0, तो ये भी लॉस है, इसका वैल्यू भी, ये असेट का वैल्यू भी कम हो 0 हो गया, कोई भी वैल्यू नहीं है, इसको दिखाना ही नहीं है अभी, तो दैट मीन्स इसका वैल्यू 30,000 था, अभी कुछ भी नहीं है, एंड इसका वैल्यू 1,54,000 था, अभी 1,50,000 था, ये भी कुछ नहीं है, तो व्हाट इज द फाइनल वैल्यू वी आर गेटिंग फॉर कैपिटल प्रॉफिट? तो क्या करना है हमें, ये जो विदाउट ब्रैकेट है 3,80,000, 80 प्लस 1 लाख प्लस 1 लाख प्लस 1 लाख, 3,80,000 में से 1,81,000 माइनस करना है, 1,50,000 प्लस 30 प्लस 1, इट इज 1,81,000 माइनस करना है, तो हमें नया वैल्यू आएगा 1,99,000। सो हमें कैपिटल प्रॉफिट मिल गया, इट इज 1,99,000। सो अब क्या करेंगे, हम इसको दो कंपनीज में डिवाइड करेंगे, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। सो ए लिमिटेड का क्या वैल्यू है, 1,99,000 इनटू कितना रेशो है, 4/5, कहाँ से मिला, 4:1, इधर हमें होल्डिंग रेशो मिला है, तो अकॉर्डिंगली वी विल हैव टू डिवाइड, एंड इधर जो दूसरा है बी लिमिटेड, इसको मिलेगा 1,99,000 इंटू 1/5, जस्ट चेक हाउ मच यू आर गेटिंग, जस्ट चेक हाउ मच यू आर गेटिंग, कैपिटल प्रॉफिट कितना आया ए लिमिटेड का, इट इज 1,59,200, एंड दूसरा इट इज 1,00,000, दूसरे कंपनी का, सब्सिडरी कंपनी का, इट इज 39,800। सो कैपिटल प्रॉफिट मिल गया। नाउ अवर नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट द रेवेन्यू प्रॉफिट। Our next step is to find out the revenue profit. So revenue profit जो है, revenue profit में हमारे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर है, प्रॉफिट फॉर द ईयर, व्हाट इज प्रॉफिट फॉर द ईयर, बाकी जितना भी प्रॉफिट था, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, P&L अकाउंट, सब प्रीवियस ईयर का बैलेंसेस था, और करंट ईयर का प्रॉफिट इधर दिया हुआ है, एंड हम किसका रिजर्व्स एंड शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सब्सिडरी कंपनी का, तो प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 60,000, प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 60,000. So here what we will see, 60,000, profit for the year is 60,000. I write here profit for the year 60,000. और यहाँ पे एक और चीज हम लोग देखेंगे, that the depreciation, जो हमने यहाँ पे देखो हमें रीवैल्यूएशन हुआ, हमने जो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे 1,00,000, तो इसके ऊपर हमें डेप्रीसिएशन नहीं चार्ज किया, तो उसमें से हम लेस करेंगे जो हमें रीवैल्यूएशन हुआ 1,00,000, जो 1,00,000 का रीवैल्यूएशन हुआ है, इसके ऊपर जो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ है, वैल्यू एडिशन हो गया प्लांट एंड मशीनरी का, तो उसका जो ये 1,00,000 अमाउंट है, उसके ऊपर तो डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं किया, बराबर उसके ऊपर तो डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं किया है। सो व्हाट वी विल डू, सो हियर वेर आर 1 मिनट, तो यहाँ पे 1,00,000 पे कितना परसेंट, 1,00,000 पे प्लांट एंड मशीनरी पे 10% डेप्रीसिएशन निकालना होता है। सो हाउ मच इट इज, जो कर ईयर बिगनिंग में प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू इंक्रीज हो गया,
9,44,444, इसमें डिप्रिसिएशन चार्ज करके 8,50,000 हो गया। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। जो हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी है उसका वैल्यू इधर कितना बता रहे, 8,50,000। ये कैसे आया 8,50,000? ये 10% डिप्रिसिएशन माइनस करके आया। ये 8,50,000 कैसे आया? 10% डिप्रिसिएशन माइनस करके आया। तो हमने जो वैल्यू यहाँ पे एडिशन हुआ 1 लाख जो बढ़ गया बिकॉज ऑफ रीवैल्यूएशन, देयर इज इंक्रीज इन द वैल्यू, उसके ऊपर का तो हमने डिप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं किया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पे डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 10,000। एंड देयर इज फर्नीचर, there is furniture जिसपे हमने क्या किया, this is what, this is the depreciation charged, this is the less depreciation under depreciation on plant, हमने कम depreciation चार्ज किया था प्लांट में, ये वो अमाउंट है। एंड ना अभी हमने क्या करेंगे, जो कम डिप्रिसिएशन चार्ज किया था, अब हम लोग फिक्सचर के ऊपर डिप्रिसिएशन, देखो लास्ट ईयर हमने क्या किया, फिक्सचर का तो वैल्यू कम हो गया, तो मतलब हमने एक्स्ट्रा डिप्रिसिएशन चार्ज किया था लास्ट ईयर। हमने किसके हिसाब से, हमारे हिसाब से, जो अब हमने क्या किया पता है वी, हमने 1 जनवरी को ये प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू 9,44,444 से 10,44,444 कर दिया। तो वैल्यू इंक्रीज हो गया प्लांट एंड मशीनरी का। कितना इंक्रीज हुआ, 1 लाख। तो 1 लाख के ऊपर तो हमने डिप्रिसिएशन ही नहीं चार्ज किया था, तो वो हमने अभी करंट ईयर का जो डिप्रिसिएशन है वो अभी चार्ज किया। लेकिन जो फर्नीचर है उसका वैल्यू तो कम हो गया। पहले पिछले साल स्टार्टिंग में जब हम लोग यहाँ पे देखे तो 5% डिप्रिसिएशन चार्ज करके वैल्यू 80,000 हो गया, लेकिन अभी के हिसाब से हम उसका वैल्यू कितना है, 83,211, मतलब 1,000 वैल्यू लॉस रीवैल्यूएशन के वजह से फर्नीचर का वैल्यू कम हो गया। तो हमने एक्स्ट्रा डिप्रिसिएशन चार्ज किया था। अब वो एक्स्ट्रा डिप्रिसिएशन हम क्या करेंगे, जो हमने लास्ट ईयर ओवर डिप्रिसिएशन चार्ज किया था ऑन फर्नीचर, वो हम एड बैक करेंगे। तो कितना अमाउंट है, 1,000 है, और फर्नीचर पे 5% का डिप्रिसिएशन है। फर्नीचर पे 5% का depreciation which is coming to 50, which is coming to 50. So what is the revenue profit? What is the revenue profit? Depreciation is also a part of profit. P&L account में depreciation को भी इफेक्ट देते हैं। तो जो प्लांट पे कम depreciation चार्ज किया था वो हमने माइनस कर दिया, और फर्नीचर पे जो ओवर डिप्रिसिएशन चार्ज किया था वो हमने एड बैक कर दिया प्रॉफिट में 50 रुपीज का। तो इसके हिसाब से रेवेन्यू प्रॉफिट इज दिस मच, 50,050। अब ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 50,050 इंटू 4 डिवाइड बाई 5 and 50,050 into 1 divided by 5. So how much it is coming? How much it is coming? 40,040 and 10,010. So हमें ये भी मिल गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। द नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, cost of control is nothing but to find out whether it is a goodwill
और इट इज द कैपिटल रिजर्व, गुडविल और कैपिटल रिजर्व। एक्स्ट्रा पे करेगा नया कंपनी तो इट विल बी गुडविल, कम पे करेगा अगर नेगेटिव आंसर मिला तो कैपिटल रिजर्व। तो यहाँ पे देखो मतलब क्या है यहाँ पे कि जो होल्डिंग कंपनी है उसने कंट्रोल एक्वायर करने के लिए, टू गेट अ कंट्रोल ऑन द बी लिमिटेड, कितना पैसा स्पेंड किया, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल क्या है। नाउ बिकॉज ए लिमिटेड इज हैविंग मैक्सिमम ओनरशिप इन बी लिमिटेड इन द सब्सिडरी कंपनी, what is the cost that A limited has incurred, what is the cost that A limited has incurred in over purchasing B limited, purchasing the shares in B limited। तो इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले we will write the cost of investment, which is how much, let us see in the, it is 10,80,000 here, 10,80,000 पे 96,000 shares purchase किया, तो this will come 10,80,000। इनको बदले में क्या मिला, इनको बदले में मिला पेड अप शेयर कैपिटल, कितना शेयर्स मिला, पेड अप शेयर कैपिटल इनको 96,000 शेयर्स मिला 10 रुपीज का, तो दिस बिकम्स 9,60,000। फिर इनको मिला कैपिटल प्रॉफिट, फिर इनको मिला कैपिटल प्रॉफिट, ये तो एक्विजिशन से पहले का प्रॉफिट है ऑफ ए लिमिटेड। ए लिमिटेड को का तो हक 1 जनवरी से ये कंपनी में आया है, बिकॉज एक्विजिशन 1 जनवरी 2012 को हुआ, उससे पहले का प्रॉफिट है जो उनको मिला है। कैपिटल प्रॉफिट इज प्रॉफिट बिफोर एक्विजिशन, तो कितना मिला 1,59,200। सो यहाँ पे कैपिटल प्रॉफिट इज 1,59,200, तो ये भी माइनस होगा। तो यहाँ पे कितना है, क्या है, इनको 10,80,000 पे, इन्होंने बी लिमिटेड को 10,80,000 पे किया, बट इनको 10,80,000 से ज्यादा वर्थ का चीज मिल रहा है, तो इनको 10,80,000 देकर 10,80,000 से ज्यादा का चीज मिल रहा है। तो ये बी लिमिटेड के को, जो बी लिमिटेड है, या तो यहाँ पे गुडविल हो सकता है या तो यहाँ पे कैपिटल रिजर्व। तो जब भी नेगेटिव आंसर मिलता है, जो बदले में मिला वो पे करने से ज्यादा वैल्यू का, मतलब ए लिमिटेड ने सिर्फ 10,80,000 पे किया फॉर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, बट ए लिमिटेड इज गेटिंग 9,60,000 का शेयर्स प्लस 1,59,200 का कैपिटल प्रॉफिट। सो दिस 39,200 इज द कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व आपको नेगेटिव आंसर करके मिलेगा, आप देखोगे कि माइनस करने पे आपको नेगेटिव ज्यादा है, नेगेटिव ब्रैकेट वाला वैल्यू इज मोर, सो इट्स अ नेगेटिव आंसर, एंड नेगेटिव आंसर मींस इट्स अ कैपिटल रिजर्व। तो गुडविल स्ट्रोक कैपिटल रिजर्व लिखा और नेगेटिव में आंसर आ रहा है, मींस इट्स अ कैपिटल रिजर्व। So इसके बाद now the next one what we will find out is a minority interest. Minority interest. तो minority interest, अब who is the minor? So shares held by B limited, shares held by B limited, B limited के पास कितना शेयर्स है, फिर इस पे आर करेंगे पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ बी लिमिटेड, सॉरी वो तो हमने ऑलरेडी लिख लिया, इधर और आएगा कैपिटल प्रॉफिट ऑफ बी लिमिटेड, उसके बाद लिखेंगे रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ बी लिमिटेड, एड रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ बी लिमिटेड, सबको ऐड करेंगे तो मिल जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो यहाँ पे 24,000 शेयर्स 10 रुपीज का,
So it becomes 2,40,000. Then how much is the capital profit? Just check. Capital profit is 39,800 and 10,000. Revenue profit is 10,010. 39,800, 39,800 and 10,010 is the revenue profit. 10,010. सबको add करो. You will get the minority interest. सबको add करो. How much you will get as minority interest? 2,89,810. 2,89,810. So we got the minority interest also. Now last step before preparing the consolidated balance sheet, हम prepare करेंगे consolidated बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे वो फाइंड आउट करेंगे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो उसके लिए हमारे पास कितना देखना पड़ेगा. व्हाट इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. बैलेंस ऑफ ए लिमिटेड, बिकॉज बी लिमिटेड का सारा प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. तो ए लिमिटेड का पीएनएल अकाउंट का बैलेंस कितना जरा देखते हैं. बी ए लिमिटेड का, बिकॉज बी लिमिटेड का सारा प्रॉफिट्स डिवाइड हो गया. तो ये शेयर प्रीमियम अलग से लिखेंगे, जनरल रिजर्व अलग से लिखेंगे. पीएनएल अकाउंट में 6 लाख है एंड प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर इज 1,80,000. सो 6 lakh and 1,80,000. 6 lakh and 1,80,000. So in the bracket I can show 6 lakh लास्ट ईयर तक का प्रॉफिट और करंट ईयर प्रॉफिट इज 1,80,000. सो ये सबको ऐड करके, दोनों को ऐड करके पीएनएल अकाउंट जो आएगा इट विल बी 7,80,000. जो शेयर प्रीमियम है, जनरल रिजर्व है, वो तो हम जब बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, सो हम दिस ऑल वी विल शो इन द रिजर्व्स एंड सरप्लस का नोट टू अकाउंट. बट ये पीएनएल अकाउंट में 6 लाख प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर इज 1,80,000. सो ये पूरा ऐड किया तो वी गॉट द पीएनएल अकाउंट बैलेंस. नाउ इस पे एक चीज ऐड करना है और वो है रेवेन्यू प्रॉफिट, द शेयर ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट. शेयर ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ कौन सा, ये बी लिमिटेड का तो हमने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट किया. ए लिमिटेड, ए लिमिटेड का रेवेन्यू प्रॉफिट कितना है देखो, 40,040. तो इधर लिखेंगे 40,040. सो ये दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास कितना हो जाएगा पीएनएल अकाउंट का बैलेंस. पीएनएल अकाउंट का बैलेंस कितना हो जाएगा. Add this, you will get 8,20,000. 8,20,040. इस पे हमें लेस करना है. क्वेश्चन में देखो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है. अनरियलाइज्ड प्रॉफिट क्या होता है. अनरियलाइज्ड प्रॉफिट मीन्स ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को सेल किया गुड्स एंड जब ए लिमिटेड बी लिमिटेड को सेल करता है तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट में सेल करता है. तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट में सेल किया मतलब बी लिमिटेड को प्रॉफिट में सेल किया. ए एंड बी आर वन ग्रुप, तो इनके बीच में कोई प्रॉफिट नहीं होना चाहिए. तो ए लिमिटेड जब बाहर वालों को सेल करता है तब प्रॉफिट ले तो अलग बात है. बट ए लिमिटेड जब अपने ही ग्रुप के कंपनी को, सेम ग्रुप दैट इज सब्सिडरी कंपनी को सेल करता है तब प्रॉफिट चार्ज करे. तो इट इज, तो वो अभी प्रॉफिट को हमें यहाँ से लेस करना पड़ेगा और स्टॉक में से भी लेस करना पड़ेगा. सो यहाँ पे देखो 50,000 का गुड्स है, 50,000, उस पे 25% का कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है. सो यहाँ पे लेट अस फर्स्ट सी दैट वो प्रॉफिट कितना है. तो यहाँ पे लिखते हैं कॉस्ट प्लस प्रॉफिट is equal to selling price, is equal to selling price
और यहाँ पे हमें पता है कॉस्ट इज 100 एंड प्रॉफिट इज 20, तो सेलिंग प्राइस विल बी 120। तो यहाँ पे हमें पता है 50,000 का गुड्स था, तो उसमें प्रॉफिट कितना रहेगा, जिस क्वेश्चन मार्क, डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 50,000 इंटू 20 डिवाइड बाई 120। देखो कितना प्रॉफिट आ रहा है, 25% है क्या 20% है, मुझे एक बार फिर से देखने दो। इट इज 25%, आई एम वेरी सॉरी, इट इज 25%। मैंने 25 रीड किया और उसके बाद में यहाँ पे 20 लिखा मैंने, आई एम वेरी सॉरी, दिस इज 25, सो दिस 100 प्लस 25 विल बिकम 125 and this will become 25 into 125, 25 into 125, तो ये कितना प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट इज ऑफ 10,000 जो कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। सो हम क्या करेंगे, पीएनएल अकाउंट में से अनरियलाइज्ड प्रॉफिट माइनस करना होता है, तो जो हमें मिलेगा इट विल बी 1 मिनट। सो ये करने के बाद हमें मिलेगा कंसोलिडेटेड पीएनएल अकाउंट, कंसोलिडेटेड पीएनएल अकाउंट का बैलेंस। सो इट विल बी 10,000 माइनस किया तो 8,10,040, this will come in the balance sheet. Now we can start with the consolidated balance sheet. So अभी हम लिखेंगे, ये जो क्वेश्चन में हमें पूछा है अभी वो प्रिपेयर करना है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, consolidated balance sheet of what is the name, A Limited and its subsidiary company, its subsidiary company B Limited as on 31/12/2012. So now we will prepare the balance sheet. बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, 3 चाहिए, 3 कॉलम एडजस्ट करते, नोट्स टू अकाउंट है इधर, तो पर्टिकुलर्स नोट्स टू अकाउंट्स एंड रुपीस। तो सबसे पहले व्हाट वी विल राइट इज इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, और इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं शेयर हो, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड, और इक्विटी में हमें मिलता है शेयर कैपिटल, एंड शेयर कैपिटल में सॉरी इक्विटी में शेयर होल्डर फंड में 2 चीज है, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसके लिए 2 नोट है, एक शेयर कैपिटल के लिए 1 एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस के लिए 2। सो वी विल गो टू द नोट्स टू अकाउंट्स, एंड नोट्स टू अकाउंट्स में हम क्या करेंगे, नोट नंबर 1 में हमें शेयर कैपिटल लिखना है, शेयर कैपिटल, एंड शेयर कैपिटल में हमने सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स को तो डिवाइड कर लिया, हमारे पास सिर्फ 24 लाख है जो कि 10 रुपीज का शेयर है, 24 लाख डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 2,40,000 इक्विटी शेयर्स मिलेगा ऑफ ₹10 ईच। तो इसको हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा 24 लाख। तो शेयर्स तो सिर्फ होल्डिंग कंपनी का लिखना है, रिजर्व्स भी जो है सिर्फ होल्डिंग कंपनी का ही लिखना है, बिकॉज सब्सिडरी कंपनी का सब रिजर्व्स को तो हमने कैपिटल प्रॉफिट एंड रेवेन्यू प्रॉफिट में डिवाइड कर दिया। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में भी सिर्फ किसका रिजर्व्स लिखना है, सिर्फ होल्डिंग कंपनी का रिजर्व्स लिखना है। तो होल्डिंग कंपनी का कौन सा रिजर्व्स है, देखो होल्डिंग कंपनी के पास शेयर प्रीमियम है, जनरल रिजर्व है, और पीएनएल अकाउंट तो हमने ऑलरेडी लिख लिया है, तो पीएनएल अकाउंट का बैलेंस तो ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर लिया है।
तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम, share premium is securities premium, then we have general reserve, then we have प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमने ऑलरेडी वर्किंग नोट में फाइंड आउट किया है। और एक चीज देखो, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में कैपिटल रिजर्व आया था, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में कैपिटल रिजर्व आया था, तो ये किधर आया है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में आया है ना कैपिटल रिजर्व। सो हम लोग को वो ध्यान में रखना है। तो क्या अमाउंट से जरा देखो, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, 3,60,000, 1,50,000 जनरल रिजर्व, तो इधर लिखेंगे 3,60,000, 3,60,000, जनरल रिजर्व है 1,50,000। फिर हमारे पास कैपिटल रिजर्व है, वो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में चेक करते हैं। कैपिटल रिजर्व 39,200, सो इधर लिखेंगे 39,200। फिर P&L अकाउंट इधर ही दिख रहा है 8,10,040, 8,10,040। तो इसको सबको ऐड करो, कितना होगा, add all this you will get 13,59,240, 13,59,240 ये हो गया। इसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग now we will go to the next, what is here, B, minority interest। minority interest, so minority interest कितना है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज 2,89,810, तो इधर लिखेंगे 2,89,810। फिर इसके बाद हमें चाहिए है कोई नॉन करंट लाइबिलिटी। क्वेश्चन में देखो डिबेंचर, बैंक लोन कुछ है क्या, नहीं, सिर्फ क्रेडिटर्स है। लाइबिलिटी साइड में देखो डिबेंचर, बैंक लोन कुछ भी नहीं है, तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। हम नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं है लेकिन करंट लाइबिलिटी है, नॉन करंट लाइबिलिटी लिखेंगे तो भी वी विल राइट इट एज नील ओनली, सो आई एम नॉट राइटिंग ओनली। तो इसमें क्रेडिटर मतलब इट इज व्हाट, ट्रेड पेएबल ना, क्रेडिटर मीन्स ट्रेड पेएबल, बट यहाँ पे ट्रेड पेएबल कोई सेट ऑफ नहीं है, इंटर कंपनी डेट्स नहीं है, तो दोनों का ऐड करके लिख लेते हैं क्रेडिटर। ये सब हमने देख लिया। ये जो करंट अकाउंट है ये कितना है, करंट अकाउंट मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट वो आता है, लेकिन इधर 34,000 नेगेटिव है, इधर 39,000 पॉजिटिव है, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो पॉजिटिव का आंसर ज्यादा है, नेगेटिव का आंसर कम है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव साइड में लिखेंगे। मतलब ये जो ए लिमिटेड है इनका 34,000 का नेगेटिव बैंक बैलेंस, और ये जो यहाँ पे है करंट अकाउंट, यहाँ पे एक्चुअली इट शुड बी बी लिमिटेड ना, बिकॉज बी लिमिटेड में वैल्यू है, तो बी लिमिटेड का जो करंट अकाउंट है यहाँ पे इट इज अ पॉजिटिव बैलेंस। सो नेगेटिव पॉजिटिव में हायर जो बिगर नंबर है इट इज इन द पॉजिटिव साइड, मतलब बैंक बैलेंस 39,000 में 34,000 पे भी कर देंगे तो भी 5,000 एक्स्ट्रा बचेगा, तो हमें बैंक ओवरड्राफ्ट लिखने का जरूरत नहीं है। इन द लाइबिलिटी साइड हम करंट अकाउंट बैलेंस, बैंक बैलेंस वो असेट साइड में लिख लेंगे। फिर इसके अलावा क्रेडिटर है 2,96,000 एंड 2,19,000, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। 2,96,000 प्लस 2,19,000, तो दोनों को ऐड किया तो हमें मिलेगा 5,15,000। ये सबको ऐड करेंगे तो हमें लाइबिलिटी साइड का टोटल आ जाएगा
Now we will go to the total of the assets. तो assets में हमारे पास फिक्स्ड असेट है, सॉरी इसमें पहले अलग लिखना पड़ेगा, नॉन करंट असेट एंड करंट असेट। तो नॉन करंट असेट में सबसे पहले लिखेंगे हमारा फिक्स असेट। फिक्स असेट में दो चीज है, वन इज टैंजिबल, अनदर वन इज इंटैंजिबल। से जरा देखते हैं टैंजिबल इंटैंजिबल क्या है हमारे पास। तो यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी इज टैंजिबल, फर्नीचर है। फिर हमारे पास करंट असेट्स है, और ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट तो ऑलरेडी क्या हो गया, ट्रेड इन्वेस्टमेंट को तो हमने पूरा ये कर दिया, जीरो वैल्यू का कर दिया, तो ये तो नहीं है। और ये 10,80,000 को कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में ले लिया, तो इसको हाईलाइट करते हैं। और क्योंकि ये तो हमने ऑलरेडी माइनस कर दिया, इसका वैल्यू जीरो हो गया है। गुडविल भी बी लिमिटेड का गुडविल का वैल्यू जीरो हो गया है, बट ए लिमिटेड का गुडविल है 5 लाख का। तो इंटैंजिबल में हमारे पास गुडविल है ए लिमिटेड का, इंटैंजिबल में हमारे पास गुडविल है ऑफ ए लिमिटेड। दिस हाउ मच, 5 लाख। फिर अभी हमारे पास दो टैंजिबल असेट्स है, एक तो प्लांट एंड मशीनरी, दूसरा फर्नीचर। तो उसके लिए हमें कौन से शेड्यूल में, आई मीन नोट्स टू अकाउंट में जाना पड़ेगा। वी विल हैव टू गो टू द नोट टू अकाउंट 3, विल गो टू थर्ड नोट टू अकाउंट, टैंजिबल असेट्स। तो टैंजिबल असेट्स में हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी है। प्लांट एंड मशीनरी का जरा एक बार वैल्यू देखो। प्लांट एंड मशीनरी 9,60,000, 8,50,000. I am getting to the point. 9,60,000 इज ए लिमिटेड का, इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बी लिमिटेड का 8,50,000 में डेप्रिसिएशन माइनस करके देयर इज अ इंक्रीज रीवैल्यूएशन ऑफ 1 लाख। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना है, 1 लाख का, मतलब 8,50,000 सिर्फ बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू था, बट बिकॉज ऑफ रीवैल्यूएशन 1 लाख वैल्यू इंक्रीज हो गया। तो दैट इज ये 1 लाख पे 10,000 का डेप्रीसिएशन भी हमने पे किया। ये 1 लाख पे 10% डेप्रीसिएशन। यू कैन सी योर कैपिटल प्रॉफिट, प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कितना इंक्रीज हुआ, 1 लाख इंक्रीज हुआ। फिर हमने देखा ये 1 लाख पे 10% का डेप्रीसिएशन पे किया, 10,000। So here it will be how much, 1 लाख जो रिवैल्यूएशन हुआ प्लांट एंड मशीनरी, और 10,000 is 1 लाख माइनस 10,000। सो ये पूरा इसको ऐड करो, ये 8,50,000 प्लस 1 लाख इज 9,50,000 माइनस इज 9,40,000। तो प्लांट एंड मशीनरी का नया वैल्यू कितना मिलेगा, ये सबको ऐड करने से इट विल बी 19 lakhs, इट विल बी 19 lakhs। सेम वे अभी हमें फर्नीचर का वैल्यू देखना है। फर्नीचर का वैल्यू कितना है, फर्नीचर का वैल्यू हमारे पास है, फर्नीचर यहाँ पे वी हैव 2,60,000 and 80,000, 2,60,000 and 80,000। सो यहाँ पे लिखेंगे 2,60,000 प्लस 80,000। इसमें क्या हो गया, वैल्यू इंक्रीज हुआ क्या कम हुआ, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट मतलब इंक्रीज हो जाना वैल्यू ऑफ द असेट, बट रिवैल्यूएशन में हमें प्रॉफिट नहीं हुआ, रिवैल्यूएशन में हमें क्या हुआ, लॉस हुआ 1,000 का। हमारा असेट का वैल्यू
कम हो गया, लेकिन हमारा डिप्रिसिएशन थोड़ा बच गया 50 रुपीज का। तो ये सबको एडजस्ट करके बोलो कितना वैल्यू आ रहा है, 2,50,000, सॉरी 2,60,000 है ना, 2,60,000 प्लस 80,000 माइनस 1,000। ये तुम लोग को दिखाओ फिर से, देखो प्लांट एंड मशीन फर्नीचर जो है रीवैल्यूएशन में 1,000 कम हो गया उसका वैल्यू, और डिप्रिसिएशन उसका वो 1,000 पे 5% का डिप्रिसिएशन बच गया, तो वो वैल्यू इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सेविंग हो गया डिप्रिसिएशन का। तो 80 माइनस 1,000 प्लस 50, तो ये कितना हो रहा है, इट इज कमिंग टू 3,39,050। so ये दोनों को ऐड करके हाउ मच विल बी द टोटल वैल्यू ऑफ टैंजिबल फिक्स एसेट, 22,39,050, 22,39,050। तो यहाँ पे लिखेंगे 22,39,050, 22,39,050। तो इसके बाद अभी हमारे पास क्या, देखो कुछ इन्वेस्टमेंट कुछ है क्या, इन्वेस्टमेंट तो पूरा जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट था बी लिमिटेड का, वो तो हमने कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में डिवाइड कर दिया। दूसरा ट्रेड इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 0 हो गया, गुडविल का वैल्यू 0 हो गया। तो अभी हमारे पास सिर्फ करंट एसेट्स ही बाकी है। तो लेट अस गो हियर, बी, what will come here, current assets। so current asset में हमारे पास क्या है, all that we can write, inventories are there, इन्वेंट्रीज में अनरियलाइज प्रॉफिट है। फिर हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल्स है, ट्रेड रिसीवेबल्स। फिर हमारे पास क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो लेट अस सी हियर, सबसे पहले इन्वेंट्री, इन्वेंट्रीज में इन्वेंट्रीज का दोनों को ऐड करते हैं और अनरियलाइज प्रॉफिट भी है, 2,00,000 एंड 1,50,000, 2,00,000 1,50,000। तो यहाँ पे लिखते हैं 2,00,000 प्लस 1,50,000। या तो मैं एक काम करती हूँ, आई विल गो टू द नोट, यहाँ पे इन्वेंट्री के लिए आई विल प्रिपेयर अ नोट, बिकॉज दैट इज अनरियलाइज प्रॉफिट विच आई डोंट वांट टू शो दैट। सो व्हाट आई विल डू, फोर्थ वन, इन्वेंट्रीज, 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 इन्वेंट्रीज में दोनों को ऐड करो। हाउ मच इज द इन्वेंट्रीज, 2,00,000, 2,00,000 प्लस 1,50,000। तो दोनों को ऐड करके इट इज 3,50,000। सो इसमें से जो 50,000 में प्रॉफिट इंक्लूडेड था, जो ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को सेल किया गुड्स, तो उसमें प्रॉफिट चार्ज किया, वो तो अलाउड नहीं है। तो अनरियलाइज प्रॉफिट हमने ए लिमिटेड के प्रॉफिट में से भी ये 10,000 माइनस किया। तो यहाँ पे से ये 10,000 माइनस करेंगे तो आउटर कॉलम में हमें मिलेगा 3,40,000, आउटर कॉलम में मिलेगा 3,40,000। सो वी विल राइट इन्वेंट्री कितना है, इन्वेंट्री इज 3,40,000। फिर ट्रेड रिसीवेबल है, ये तो ठीक है, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कुछ इंटर कंपनी डेट्स नहीं है। तो 8,20,000, 4,10,000। सो ये दोनों को ऐड करते हैं, 8,20,000 प्लस 4,10,000। तो कितना होता है दोनों को ऐड करने पे, 8,20,000 प्लस 4,10,000 gives us 12,30,000।
फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के लिए क्योंकि दो चीज है तो हम क्या करते हैं, वी विल गो टू द नोट्स, नोट्स में जाके प्रिपेयर करते हैं, नोट्स में जाके फिफ्थ वन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हमारे पास बैंक बैलेंस है, बैंक बैलेंस है और दूसरा हमारे पास करंट अकाउंट्स है, करंट अकाउंट। तो एक में लेट अस फर्स्ट सी कंफर्म करते हैं। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, हमारे पास हियर बैंक बैलेंस है 2,50,000, 2,50,000। तो इधर दोनों लिखेंगे 2,00,000 plus 50,000 which will be equal to 2,50,000। फिर हमारे पास करंट अकाउंट है, देन वी हैव करंट अकाउंट, तो वो कितना है, इट इज 39,000 एंड 34,000। तो यहाँ असेट साइड में 39,000 है, लाइबिलिटी साइड में 34,000 है। सो यहाँ पे हम क्या कैसे लिखेंगे, 39,000 एंड यहाँ पे इट इज 34,000, वो माइनस वाला है ना, तो वो मैंने ऐसे लिखा। तो ये बिकम्स लाइबिलिटी साइड में तो नेगेटिव फिगर है 5,000, तो इन दोनों को ऐड करने पे इट बिकम्स 2,55,000, 2,55,000। So this becomes 2,55,000 and now we need the total, now we need the total। So total करो 24 lakh plus 13,59,240 plus 2,89,810 plus 5,15,000, you should get 45,64,050। सेम वे इधर भी इतना ही मिलना चाहिए 45,64,050। सो हम लोग को समझे, इफ बोथ द टोटल्स आर कमिंग सेम we can say that our balance sheet has tallied।